Hello, today we will talk about General Studies Paper 2 of UPSC Mains, particularly the topic of federalism or center state relations. So we will go through the questions that has been asked in the previous years of UPSC Mains examination, and we'll try to find out what kind of a questions are being asked from this topic, which areas are being repeated, and of very great importance while dealing with this topic of federalism. So let's start. First question is on extra constitutional factors. Extra constitutional factors मतलब कुछ there are some things that are mentioned in the constitution, and the things that are not mentioned in the constitution we call it extra constitutional. So these are the factors which are not mentioned in the constitution, not mentioned in the constitution, but they could be mentioned in some other statute or some other convention or some other practices, and they affect the federalism. They affect the relation between center and state. So these extra constitutional factors, the questions actually asked on this particular aspect. Then second question is on administrative relations between center and state. Administrative relations means basically uh, this is when we talk about federalism, there are certain kind of there are certain aspects of federalism like financial, legislative, executive. So this is something related to executive side of the government, executive side of the state, I'm sorry, executive side of the state. So these relations between center and state, administrative relations between center and state, इसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है. नेक्स्ट, power of borrowing by state. So state borrow money from center and from elsewhere, but there are some constitutional restrictions, and center has been given the supervisory power over this aspect. So in terms of finances, state government have to conform to the guidance or some rules and guidelines which are being given by the state, which are being given by the center. So this is something we can call it part of a financial federalism or fiscal federalism. Then next, directly question on financial relations, basically financial federalism, question based on financial federalism. Then again, extra constitutional factors. We have seen this question was asked in 2000 and again in 2008. So एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स जो है इसको रिपीट किया गया है, वो चीज़ें जो कि संविधान में नहीं है, संविधान में लिखित रूप में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी फेडरलिज्म को अफेक्ट करती है. देन डिमांड फॉर ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी. अलग अलग स्टेट्स हमारे यहाँ पे जो है वो एक तरह से ऑटोनॉमी की, ग्रेटर ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ द पावर्स एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ द सेंटर. बेसिकली अगर आप ज़्यादा ऑटोनॉमी दोगे तो सेंटर थोड़ा वीक होगा, अगर सेंट्रलाइज सब कुछ रहेगा तो सेंटर स्ट्रांग रहेगा. सो अगर हम बोले स्टेट को अगर आपको ग्रेटर ऑटोनॉमी देनी है, इसका मतलब यही है कि फेडरलिज्म में जो सेकंड जो टीयर है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसको ज़्यादा पावर देनी है और केंद्र या सेंटर से पावर थोड़ी कम करनी है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आया है इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स और उसके रेजोल्यूशन के ऊपर. ठीक है, ये कैसे किया जाता है, इस पर ये क्वेश्चन है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली इस पे बात की, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इट लीन्स इन फेवर ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर. स्ट्रॉन्ग सेंटर, हम लोग की कॉन्स्टिट्यूशन ने ही सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाया है. बेसिकली ये कैनेडियन मॉडल है जिसमें से जो सेंटर है उसको ज़्यादा पावर दी गई है स्टेट के विद रिस्पेक्ट टू स्टेट्स, अनलाइक
America, United States of America, where the states are given more power in more functions, right? So we have followed the Canadian model of federalism, in which center is more powerful. We also call it quasi federalism, right? So ये जो है इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि we have more we have strong center and relatively weaker state. So इसके ऊपर हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में लिखना है. देन नेक्स्ट पूछा गया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे. कोऑपरेटिव मीन्स सेंट्रल एंड स्टेट दोनों आपस में मिलकर सहयोग से एक दूसरे के साथ में समन्वय बिठा करके जो है काम करेंगे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 69th अमेंडमेंट. 69th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस अमेंडमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू फेडरलिज्म. फेडरलिज्म को लेकर के इस अमेंडमेंट में काफ़ी कुछ बदलाव, काफ़ी कुछ चीज़ों को मॉडिफाई किया गया है. और इस अमेंडमेंट को जब भी फेडरलिज्म की बात आती है तो हमें इस अमेंडमेंट को, इसके बाद में एक और हम लोग देखेंगे 69th अमेंडमेंट पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है. इसके बाद में 101 अमेंडमेंट. सो बेसिकली फेडरलिज्म को लेकर के जब भी अमेंडमेंट हुआ है, मेजर अमेंडमेंट फेडरलिज्म को लेकर के हुआ है, तो यूपीएससी ने उस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट. देन नेक्स्ट कॉपरेशन. अभी हम लोगों ने बात करी है क्वेश्चन नंबर 9 में, जो कि 2015 में पूछा गया था. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आया हुआ था. यहाँ पे कॉपरेशन के बारे में बात कर रहा है, कॉम्पिटिशन के बारे में बात कर, कन्फ्रंटेशन के बारे में बात कर. कोऑपरेशन के बारे में तो हम लोगों ने देखा, कॉम्पिटिशन सेंटर और स्टेट आपस में कॉम्पीट करेंगे कुछ एस्पेक्ट्स पर. कन्फ्रंटेशन, जब आप कॉम्पीट करेंगे और कुछ चीज़ें जो है बोना कंटेंशन बन जाएगी तो आप वहाँ पे कन्फ्रंट करेंगे. बेसिकली एक ऐसा कुछ पहलू जिस पे दोनों ही सेंटर और स्टेट जो है आपस में लड़ पड़े, उसको हम लोग बोलेंगे कि कन्फ्रंटेशन हो रहा है, कोई ऐसा मुद्दा. फॉर एग्जांपल कन्फ्रंटेशन का जो एक इशू है वो है कि हम लोग अभी इस पर एक क्वेश्चन आएगा कन्फ्रंटेशन पे सीबीआई वाला, कि सीबीआई जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी है और स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेट करती है, बट स्टेट गवर्नमेंट उसको कंसेंट देती है इन्वेस्टिगेशन के लिए. लेकिन कई बार, जैसे कि अभी हम रिसेंट कुछ टाइम में हम लोगों ने देखा कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कंसेंट नहीं दिया सीबीआई को. वो नहीं देना चाह रही थी कि वो नहीं चाह रही थी कि सेंट्रल एजेंसी जा कर के वहाँ पे काम करे. कुछ था मतलब सेंट्रल और स्टेट, क्योंकि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज रूल करती है, वेस्ट बंगाल को अलग, सेंटर को अलग. सो उनके कुछ इश्यूज थे जो कि मतलब पब्लिक में आ गए थे. इसको हम बोलेंगे कन्फ्रंटेशन. स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रिस्पेक्टिव अथॉरिटी को लेकर के जो है एक दूसरे से लड़ पड़ रही है. तो इस पर इस क्वेश्चन में बात करनी है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी. सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी जो है ये हमें पहले भी पूछा गया है. अभी ये क्वेश्चन 2020 का है. सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी जो है इसके पहले पूछा गया था 2014 में. सो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी पे फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाँ, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी के बारे में बात की गई है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा इस क्वेश्चन में ये है कि विथ रिस्पेक्ट टू उसने कुछ इट हैज़ आस्क्ड सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन एक्ट्स, जैसे कि एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड फार्म्स एक्ट. सो बेसिकली it has the question is asking about centralizing tendency with respect to these acts. So these acts are basically a very good example of centralizing tendency, or if you have to analyze centralizing tendency, or if you have to analyze federalism. So these acts are really good example because UPSC has itself given these acts as something to evaluate, right? Then next question is on 14th Finance Commission. Again, this is a financial aspect of federalism or fiscal federalism. Basically, what is Finance Commission? Finance Commission basically deals with the finance distribution of finance between center and state. It recommends distribution of finance between center and state. So when we talk about Finance Commission, whether it's 13th, 14th, 15th Finance Commission, it is basically dealing with financial federalism.
So this question is basically of financial federalism, right? Again, then I have told you earlier, a question based on CBI. It is basically confrontation, right? Confrontation between center and state. State government does not want CBI or central authority, Central Bureau of Investigation, to investigate in a particular state, maybe because of some reasons or some political will, but center is actually forcing CBI to investigate, to penetrate in the state. So although there is a kind of a some provision of consent by the state, but sometimes both center and state uh, you know um, engage in some kind of a battle. In this scenario, I have given example of West Bengal government. So this is basically confrontation. So this question is asked based on confrontation of both tiers of the government, center and state. Here the example is given of CBI. Then next question is basically, again, this question is based on centralization and state autonomy. Both of these aspects has been asked before. सेंट्रलाइजेशन इस पे क्वेश्चन है, स्टेट अथॉरिटी इस पे, स्टेट ऑटोनॉमी इस पे क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कर दिया है, इसको सेंट्रलाइजेशन को रिलेट कर दिया गया है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से, स्टेट ऑटोनॉमी को रिलेट कर दिया गया है स्टेट पॉलिटिकल पार्टी से, और पूछा गया है कि क्यों सेंट्रलाइजेशन जो है वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सेंट्रलाइजेशन जो है प्रेफर करती है, और स्टेट ऑटोनॉमी प्रेफर करती है रीजनल पार्टीज और स्टेट लेवल पार्टीज। सो बेसिकली अगेन ये क्वेश्चन सेंट्रलाइजेशन और स्टेट ऑटोनॉमी का है, थोड़ा सा बदल के पूछ लिया गया है। देन मैंने कहा था 69 अमेंडमेंट जो है वो पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू फेडरलिज्म। अगेन फिर से अमेंडमेंट हुआ 101 अमेंडमेंट, और क्योंकि 69 अमेंडमेंट हुआ था फेडरलिज्म के ऊपर तो क्वेश्चन आया था, अगेन 101 अमेंडमेंट हुआ फेडरलिज्म के ऊपर तो अगेन क्वेश्चन आया। फेडरलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसका अमेंडमेंट, उससे रिलेटेड कुछ अमेंड हो रहा है तो डेफिनेटली क्वेश्चन पे से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पूछा गया है, अगेन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। बेसिकली इसमें यह पूछा गया है, व्हाट चेंजेस हैज़ द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस इन द डोमेन ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को लेकर के क्या चेंजेस अभी किए गए हैं, कुछ मतलब रिसेंटली जो चेंजेस किए गए हैं उस पर पूछा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ टू बिल्ड अ ट्रस्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म। बेसिकली अभी तक हम लोग ये देखते आ रहे हैं, क्वेश्चन पूछा गया जा रहा है कि कॉपरेशन पे क्वेश्चन है, कन्फ्रंटेशन पे क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन पे क्वेश्चन है, सेंट्रल स्टेट जो इश्यूज़ हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही उस पर क्वेश्चन है। तो इसमें ये पूछ लिया गया है कि क्या ऐसा चेंजेस रिसेंट में किए गए हैं और क्या करना चाहिए, व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया गया है इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, इन सब चीज़ों को स्मूथ करने के लिए ये पूछा गया है, और आगे और क्या करना चाहिए भविष्य में ये पूछा है। इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन जो रिसेंट लास्ट ईयर पूछा गया है। द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है रिसेंट रिफॉर्म से पूछा गया है फिस्कल फेडरलिज्म के, राइट। फिस्कल फेडरलिज्म मैंने कहा जो फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन है वही फिस्कल फेडरलिज्म पे है, फाइनेंशियल फेडरलिज्म पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन इसमें उससे आगे बढ़कर जो अभी क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछ लिया गया, ये 2025 का ही क्वेश्चन है कि फिस्कल फेडरलिज्म को लेकर के जो रिफॉर्म्स हैं वो क्या लिए गए हैं, किस तरह के रिफॉर्म्स लिए गए हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है। सो रिसेंट रिफॉर्म्स relate with respect to fiscal federalism. So we have seen that questions are being asked in a repeated manner. फिजिकल फेडरलिज्म बार बार पूछा गया है, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बार बार पूछी गई है, स्टेट ऑटोनॉमी जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी के अपोजिट क्या होता है, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी और स्टेट ऑटोनॉमी, ये एक दूसरे के अगेंस्ट है।
सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी होगी तो स्टेट ऑटोनॉमी नहीं होगी, और स्टेट ऑटोनॉमी होगी तो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी जो है वो काफ़ी वीक हो जाएगी। सो इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर जो अमेंडमेंट्स हुए हैं मतलब जो भी फेडरलिज्म को लेकर के जो अमेंडमेंट्स हुए उस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो दीज आर लाइक बेसिकली दीज आर द रियली फ्यू क्वेश्चंस विच आर बीइंग रिपीटेड asked many times, multiple times. So what we have to prepare in federalism is these areas only. इसके बियॉन्ड अभी तक तो कुछ पूछा नहीं गया है। सो नेक्स्ट देखते हैं, मतलब मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं कि लाइक इन फ्यूचर व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, और आई वुड नॉट से कि ये रिपीट होंगे, बट इसी लाइन पे ऐसे कुछ क्वेश्चन अगेन पूछे जाने की उम्मीद रहती है, और ये आप प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। सो एक जो टॉपिक है वो साइमल्टेनियस इलेक्शन का है। ये फेडरलिज्म को कैसे अफेक्ट करता है, ये फेडरलिज्म को बेसिकली एक बहुत नया और हॉट टॉपिक है फेडरलिज्म को विद रिस्पेक्ट टू फेडरलिज्म। साइमल्टेनियस इलेक्शंस, सेंटर में स्टेट में एक साथ में इलेक्शंस करवाना, राइट। सो बेसिकली ये फेडरलिज्म को या सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को कैसे अफेक्ट करेगा, ये क्वेश्चन इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट जो है जीएसटी रिफॉर्म्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हालांकि जीएसटी रिफॉर्म्स पर डिफरेंट एस्पेक्ट को लेकर के अलग से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन जीएसटी रिफॉर्म्स एक तरह से फेडरलिज्म का भी पार्ट है, क्योंकि इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों के ही टैक्सेस हैं। अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंटरस्टेट काउंसिल और नीति आयोग, ये कुछ बॉडीज़ हैं जो नीति आयोग है वो आपसी एक काइंड ऑफ अ कॉपरेशन के लिए इट वर्क्स फॉर द कॉपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड अमंग्स द स्टेट्स। सो नीति आयोग जो है एक थिंक टैंक है जो एक काम करता है। इसके पहले ये प्लानिंग कमीशन ये काम करता था अभी, और साथ में एक इंटरस्टेट काउंसिल भी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो दिस इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड दिस इज़ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर। सो इसके रिस्पेक्ट में आप फेडरलिज्म के ऊपर आप मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द नेक्स्ट आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं बेसिकली। द नेक्स्ट जो है सेंट्रल लेजिस्लेशन इन स्टेट सब्जेक्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हालांकि इसको दूसरे एस्पेक्ट में बेसिकली लेजिस्लेटिव जो एस्पेक्ट है पार्लियामेंट का उस डायरेक्शन में अगर हम लोग लेकर के जाएँ तो वहाँ पे भी इस क्वेश्चन को हम लोग रख सकते हैं कि जो लेजिस्लेटिव प्रोविजंस है पार्लियामेंट के, जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पार्लियामेंट से रिलेटेड, वहाँ पे पार्लियामेंट का जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है उस टॉपिक में भी इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। बट यहाँ पे भी ये एक तरह से फिट होता है कि अगर सेंटर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट पे कानून बनाता है, सेंटर जो है सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव असेंबली है हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है, व्हेन इट मेक्स लॉज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स, so basically it's kind of an encroachment of legislative power of the state government or state as an organ, second tier of the state. So basically एक तरह से यहाँ पे एक स्ट्रेन डेवलप होता है फेडरलिज्म में with respect to legislature. We could call it legislative federalism, right? So these are the questions you could practice at home. This is all about federalism. You have to read with respect to these micro topics only, right? So in next we will try to write answers of these questions, all the different categories of questions. We have categorized questions like in different micro topics. We will try to write those answers. We will try to discuss those questions in detail. Okay, thank you.